गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी सुनने वालों को मेरा अभिवादन। आज हमारे पैनल में बड़े वशिष्ठ और अनुभवी लोग हैं। हम रोज़ाना की हिंदी और इंग्लिश में बातें करेंगे, जो भी कंफर्टेबल हो। दिल से बात करेंगे ताकि जो भी सुने उसे कुछ नया सीखने को मिले। मालूम नहीं किस बात से किसकी ज़िंदगी में सुधार आ जाए। इस वेबिनार टेक्नोलॉजी के माध्यम से सैकड़ों लोग जुड़ पा रहे हैं अपने घर से, और हो सकता है इसी माध्यम से लोग एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रेरित हो जाएं। तभी तो इस सेशन का नाम रखा है टेक्नोलॉजी एज एन एनेबलर फॉर पीडब्ल्यूडी एंटरप्रेन्योर्स। हमारा मकसद है जो बातें हम करें उसे लिसनर्स का उद्धार हो। हमारे पैनलिस्ट का अनुभव और नॉलेज जो उन्हें एकत्रित किया है अपने एजुकेशन से, काम से, दूसरों से इंटरैक्ट करके, वो सब ज्ञान लिसनर्स को काम आए। और जो भी क्वेश्चन आपके हों वो आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। शुरू में मैं हर पैनलिस्ट का परिचय उनसे क्वेश्चन पूछने से पहले दूंगा। मेरा उनसे आग्रह है कि वो 5 मिनट में उसका उत्तर दें, ताकि आखिर के 15 मिनट में आप लोगों के क्वेश्चंस का वो आंसर दे सकें। So I'll start today's discussion with Mr. Dilip Loyalka, FCA LLB. He has demonstrated how unflinching determination can achieve the unthinkable. He has the rarest of rare achievements to his credit. He is the first person in India and perhaps the globe to qualify as a chartered accountant in 1983 in spite of his visual impairment. Wow! Listeners, आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो फर्स्ट सीए थे, 1983 में बने और वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं। उन्होंने अपने फादर की फर्म जे लॉयल्का एंड कंपनी कोलकाता में अपना सीनियर पार्टनरशिप का रोल अभी भी वो निभा रहे हैं। In 2002, the President of India, लेट अब्दुल कलाम जी ने उनको प्रेजेंट किया बेस्ट प्रोफेशनल हैंडीकैप पर्सन अवार्ड। In 2000, the Rotary Club of Calcutta Inner City conferred on him the Paul Harris title for his contribution to the cause of blind welfare. He is the author of the book How to Handle Income Tax Problems, कैसे सुलझाएं आयकर समस्याएं। दिलीप जी, आप बताएं, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये अमेजिंग सफर कैसे तय किया, और बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क होता है? आप सीए हैं और आपसे बेहतर इस चीज को और कोई नहीं बता पाएगा। ओवर टू यू दिलीप जी। At the outset, I'll express my deep sense of gratitude to Sarthak for giving me this opportunity. Technology is an enabler, there's no dispute about it. In 1960s, when there was very few things available, then also tape recorders were there. That tape recorders used to work on spool system. In 1970s, then cassette recorder came in. And then in 1990, early 90, before that we had talking calculators, etc., talking wristwatches. And in 1990 or 91, 92, we got this screen reading and scanning and reading books system, which now it has become very advanced, and almost everything is possible with the use of technology. But technology has made it very easy. Now all informations are available even on a mobile phone, and communication has become so easy with the invent of voice recognition. So you need not even type, you can straight go into your voice statement and message can be conveyed. Technology has made life much different than what it was. Earlier, for a very small thing, just for say recording a number, anything, either if you do not carrying a dictaphone sort of thing, you have to remember it. Now with the help of technology, we have got everything to have, and things have become much easier. Businessman and entrepreneurship is different, definitely, but all entrepreneurs are definitely businessmen. Entrepreneur
is a person who starts a thing, a new thing basically, or even an existing thing of his own. Physically handicapped persons can be an entrepreneur also. He can also carry on businesses. There is no bar in doing business. And नहीं, हमारे देश में ना बिजनेसमैन के नाम से तो बहुत लोग हैं. जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं और स्टार्टअप की बात करते हैं तो सडनली बड़ी गिनती बहुत कम हो जाती है. तो ऐसा क्यों? और आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आप क्या चीज कर रहे हैं? the basic reason behind it is the lack of confidence on the ability of a disabled person, of the general people. They don't give them chances. People say things, anything, you can't do it. So they don't get opportunity to do things. So that is one of the reason that they are unable to become an entrepreneur, because of the lack of trust and confidence on the ability of disabled people by the normal persons. This is the major reason that disabled persons are unable to perform in life. See, opportunity is very important. See, once I say 50 years back, we used to feel women cannot do many things, so many things. Now, with the opportunity, they have proven they are second to none. They are in police, they are in military, they are in pilots, everywhere. So the whole issue is the opportunity. If these disabled persons are given proper opportunity, I have no doubt they can do almost everything. It is only the fact that they are not getting opportunity. People do not have trust and confidence on their ability. They are suffering. They are not suffering because of lack of vision or lack of other supports or anything. They are basically suffering because of the lack of trust and confidence of the people on them. Whenever a parent detects that his child is blind or something else, they don't provide them education. They don't provide them with technical skills. So his handicaps multiplies, and ultimately he has to suffer in life. Thank you, sir. Thank you very much. I think what is very essential, one single word, confidence. वो कॉन्फिडेंस के साथ जो हम अपने डिसेबल्ड दिव्यांगजन भाई हैं, बहन हैं, उनको हम अगर कॉन्फिडेंस दे सकें तो बहुत सारे काम वो खुद ही कर सकते हैं और हमें उनको कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है. वेरी वेल सेड. नाउ आई विल गो ऑन टू मिस्टर भवेश भाटिया. मिस्टर भाटिया is the CEO of Sunrise Candles. He's a blind entrepreneur, a candle making firm which is run by visually disabled people. Mr. Bhavesh has been participating in Paralympic category of games and has won over 115 medals. Again, what an achievement that is. Bhavesh was born with a retina macular degeneration, had little eyesight when he was growing up. At the age of 23, Bhavesh lost his eyesight and consequently lost his job as well. Sunrise Candles employs 3,500 visually impaired people and Divyangjans in 14 states of India. They manufacture different kinds of candles, which includes pillar candles, floating candles, novelty candles, gel candles, toy-shaped, fruit basket, and traditional candles. They have developed 10,700 designer scented, plain, and aromatherapy candle designs. भावेश जी, आप ये बताएं, जी सर, इतने विविध प्रकार की कैंडल्स आप कैसे बनाते हैं? उसके लिए आप किस तरह की टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए डिजाइन और नए डिजाइन को बनाना, बट अपने वर्कफोर्स को एक्सप्लेन करना कि कैसे बनाना है? जी हाँ, बहुत उत्सुक है सुनने के लिए आप. बिल्कुल सर. ये मैं आपको, अतुल जी, पहले तो आपका और संपूर्ण सार्थक परिवार का हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं कि सर आज मैं आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूं. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हमारी हॉबी और हमारा काम जब एक होता है तो फिर वो आसमान की बुलंदियों को छूता है. सनराइज कैंडल ये प्रोजेक्ट सिर्फ भारत का ही नहीं, अब वर्ल्ड का एक यूनिक प्रोजेक्ट बन चुका है जहां इतनी बड़ी संख्या में हमारे दृष्टिबाधित मित्र काम करते हैं. लेकिन मैं और मेरी संपूर्ण टीम जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब देते हुए मैं ये जरूर शुरुआत में कहना चाहूंगा अतुल जी कि हम ईश्वर खुदा का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 2 के बदले ये 10-10 आंखें बख्श दी. ठीक है ना,
नहीं दिखता, लेकिन आज हमारी बनाई हुई कैंडल्स करीब 67 कंट्रीज में उजाला फैला रही है बहुत। तो ये जो टच सेंसेशन है उससे ये काम काफी आसान हो जाता है। शायद हम ब्रेल को अब कहीं तो भी थोड़ा पीछे छोड़ने लग गए, लेकिन कलर रिकॉग्नाइज करना अलग अलग कैंडल्स के लिए तो ब्रेल का उपयोग होता है, फ्रेग्रेंस रिकॉग्नाइज करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, और ये टच सेंसेशन से पूरा, क्योंकि हम इसमें कोई मशीनरी यूज नहीं करते हैं, हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा हाथों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तो छोटे छोटे रबर सिलिकॉन के डाइज हैं या कास्टिंग के डाइज हैं जो हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसी के माध्यम से ये पूरे प्रोडक्ट डिजाइन किए जाते हैं। कुछ डिजाइन इंस्टीट्यूट है जो पुणे, अहमदाबाद, वो हमें एज ए केस स्टडी लेते हैं। तो कुछ अटपटी डिजाइन हो, या एक ताजमहल बनाना है या कुतुब मीनार बनाना, तो उसके लिए हम बिल्कुल डाई के लिए उनकी मदद लेते हैं। लेकिन हर एक डिजाइन बनाने के पहले हम उसको क्ले में पहले डिजाइन करते हैं। मिट्टी में हर प्रोडक्ट को, जो भी डिजाइन नहीं बनाना है, पहले मिट्टी में बनाई जाती है। वो मिट्टी सूखने के बाद में उसके ऊपर रबर सिलिकॉन की परतें लगाई जाती है, उसको और कड़क करने के लिए पीओपी की परतें लगाई जाती हैं, और उसको कट करके 3-4 पार्ट में अलग करके, और फिर उसको वापस मिट्टी से अलग करके उसको रीअसेंबल करके और उसको लुब्रिकेट करके और फिर मोम पोर किया जाता है। कलर और फ्रेग्रेंस के लिए मैंने जैसे कहा कि हम इसमें ब्रेल का उपयोग करते हैं। और सबसे जो मैं समझता हूं कि घूम फिर कर जो बात आती है एम्प्लॉयमेंट की, या किसी सामने वाले नए दृष्टिबाधित या दिव्यांग मित्र में इच्छा शक्ति की, तो सनराइज कैंडल को डिजाइन ही इस तरह से किया हुआ है कि इसमें कोई मालिक नौकर नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से एंड ऑफ द डे जो भी नया बेनिफिशरीज जुड़ता है, उस दिन का पूरा पैसा उसको उसी दिन शाम को दे दिया जाता है। वो भले रास्ते में कहीं भीख मांगता हो या कहीं पे एक आइडियल घर में बैठा था टूटे हुए फर्नीचर की तरह, लेकिन जब पैसा हाथ में आता है तो ऑटोमेटिकली उसमें अंदर से एक आत्मविश्वास जागृत होता है, और वो फंड ही है जो उसको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम है पूरा डिडक्स नंग पे डाला हुआ है, जितना आप बनाए उतना आपका। और पूरा मार्केट करीब 4,500 हम रिटेल काउंटर चलाते हैं शिरडी से तिरुपति तक, जहां भी भीड़ है, फुटफॉल है, टूरिज्म है, वहां हमारे रिटेल काउंटर है। वो पूरा हमने डिडक्शन पे डाला हुआ है। कस्टमर और सनराइज के बीच में शायद कोई एक मिडलमैन है तो एक हमारा दिव्यांग मित्र है। इस वजह से शायद सनराइज कैंडल आज वर्ल्ड का एक यूनिक प्रोजेक्ट बन चुका है। अतुल जी सिर्फ एक मैं दिलीप जी ने जो बात की मेरे दिल को छू गई, लेकिन दिलीप जी की बातों के साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि आपने जो डिफरेंस पूछा था बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर का, मैं समझता हूं बिजनेसमैन आज नहीं तो कल बूढ़ा जरूर हो जाएगा, लेकिन एंटरप्रेन्योर एक ये विचारधारा है, ये कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। अगर उसमें ऊर्जा है तो जिंदगी भर, शताब्दियों तक वो एक एक यूथ की तरह वो आगे बढ़ सकती है। जी बहुत बढ़िया। ये परिभाषा मैंने पहली बार सुनी, लेकिन दिल को छू गई। बहुत बढ़िया बात, बहुत ही बढ़िया बात की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्पीकर के पास। मिस्टर गुप्ता, मिस्टर अजय गुप्ता of Bachpan Play School has been brought up in Delhi with roots originating from simple middle class business family. As on date, Bachpan School has 1,100 plus trees spread across the length and breadth of the country. Their nursery schools are concerned with the early development of children and introducing them to structured learning through a systematic and innovative way. This 44-year-old enthusiast is born to spearhead diverse industries, having explored finance, exports, food segments, with his passion and unparalleled skill set. So, Mr. Gupta, we all know that if a disability is diagnosed early, before the age of 5, then intervention can be done to fully remediate or arrest any further decline in a child's condition. However, this is not known to parents, and it is very important that they know that a child can be fully okay if particular disability is known very early. I'm told there are technologies by which a child's behavior can be studied through a video screen and a first level of diagnosis can be made. How do you like to take forward such innovations in your school chain? And how do you think you can help the Divyangjan children at a very early stage? Over to you. Thank you, sir. Thank you, Atulji. Thank you, Sarthak, for giving me this opportunity. पिछले 9 महीने के लॉकडाउन में, और मैं एक करेक्शन करूंगा सर, उसमें थोड़ी सी गलती है, मैं भी 50 साल पूरे किए हैं पिछले हफ्ते, तो आई एम 50 नाउ। सर मैं अपनी बात ना अपने तरीके से बोलता हूं, तो शायद मैं
अपने आने का और सार्थक के बुलाने का जो प्रयास है उसको सार्थक कर पाऊंगा। जब मैं 9 महीने का था तो मुझे पोलियो हो गया था। पोलियो की दवा तब आनी शुरू हो गई थी, लेकिन घर में जो बुजुर्ग थे वो बच्चों को छुपा देते थे और ऐसा माना जाता था कि इससे कुछ इफेक्ट खराब होंगे, और मुझे पोलियो की दवा उस वजह से नहीं मिल पाई थी। नहीं तो शायद पोलियो की दवा तब तक कुछ सरकारी डिस्पेंसरीज में और आने लग गई थी। 13 साल की उम्र तक मुझे गोदी में लेकर स्कूल छोड़ाते थे और गोदी में स्कूल ले आते थे। 13 साल की उम्र में मैंने पहली बार कैलिपर और क्रचेस पहनकर अपनी जीवन यात्रा शुरू करी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। 33 सालों तक 46 साल की उम्र तक मैंने कैलिपर और क्रचेस के साथ अपने बिजनेसेस किए। मैं ऐसा सोचता हूं सर कि मुझे मरने के बाद कहा जाए कि एक बिजनेसमैन मरा है। मैंने 20 साल पहले बचपन प्ले स्कूल शुरू किया और उसके भी 1100 स्कूल पूरे भारतवर्ष में हैं। उसके 7 साल बाद हमने एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल शुरू किया। उसकी 110 ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में हैं। एक डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया और अभी इसी साल हमने ऋषिहुड यूनिवर्सिटी, उसमें मैं को फाउंडर हूं, ऋषिहुड यूनिवर्सिटी के नाम से हमने एक यूनिवर्सिटी शुरू की। मेरा ये पिछले 21-22 सालों का सफर एजुकेशन में रहा है और 4 साल पहले मुझे रियलाइज हुआ कि इस फील्ड में कुछ काम करने की रिक्वायरमेंट है। मेरे कंधों ने फर्दर मेरा साथ देने से इनकार कर दिया और मैं व्हीलचेयर पे शिफ्ट हो गया। जब तक मैं कैलिपर और क्रचेस के साथ अपना काम कर रहा था, मुझे कभी भी ये रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे को कुछ करना चाहिए, मेरी शायद कोई उपयोगिता है। मैंने ऐसा समझा था कि मेरा जन्म तो खाने कमाने के लिए हुआ है एंड आई वाज वेरी हैप्पी डूइंग माय बिजनेसेस। अब 3-4 साल से जब जब मैं इस फील्ड को देखता हूँ, इस सेक्टर को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर बहुत सारे सार्थक हैं, बहुत सारा काम हो, हम लोग बहुत बार बार जुटें, तभी शायद हम कुछ और काम यहाँ कर पाएंगे। टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, अर्ली इंटरवेंशंस आ रही हैं, लेकिन अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है और किसी भी तरह के कार्यक्रम को अभी समाज में उसकी जरूरत है। जब हम देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जितना भी काम इस फील्ड में किया जाएगा उतना ही कम होगा। मैं अभी एक सार्वजनिक मंच है, बताया गया कि हमारे वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं एंड इट विल बी ऑन एयर एंड पब्लिक, और शायद कुछ बड़ा नंबर हमें देख रहा है। मैं बिना किसी शर्म के ऐसा कहना चाहूंगा कि जो मेरे 110 स्कूल्स हैं अभी तक वो व्हीलचेयर फ्रेंडली नहीं है। अभी तक वहां पर हमने डिसेबल्ड फ्रेंडली टॉयलेट नहीं बनाया है। अभी तक हमने अपने उन स्कूलों में वो बदलाव नहीं किए हैं। पिछले 4 साल से लगातार मैं ये लड़ाई अपने स्कूलों के साथ लड़ रहा हूँ। ये नहीं बोलूंगा कि वो लड़ाई कोई परेशानी वाली लड़ाई है, वो पहली लड़ाई खुद से है, खुद के ज्ञान ना होने की लड़ाई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 2-3 सालों के अंदर अंदर हम अपने स्कूलों को एटलीस्ट व्हीलचेयर फ्रेंडली कर लेंगे। अगर मैं वो भी कर पाऊंगा तो मुझे लगेगा कि मेरे जीवन का कुछ हिस्सा सार्थक हो गया है और आगे की लड़ाई, आगे की बात शुरू करेंगे। जब मैं व्हीलचेयर पे नहीं था तो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरा कमरा व्हीलचेयर फ्रेंडली बन रहा था, मेरा टॉयलेट व्हीलचेयर फ्रेंडली बन रहा था। लेकिन मैं जब व्हीलचेयर पे आया तो मुझे वो दर्द महसूस हुआ और आज हमारी पूरी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल डिजाइन पे है। उसमें 280 में से 28 कमरे व्हीलचेयर फ्रेंडली हैं और सभी तरह की डिसेबिलिटी को मैटर कर सकते हैं, कैटर कर सकते हैं। तो यहाँ कहने का पर्पज ये है कि सर, अगर मुझ जैसे व्यक्ति को जो खुद लगभग 50 साल से पोलियो पेशेंट है, पढ़ा लिखा है, दिल्ली शहर में रहता है, किसी भी तरीके से उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो भी उसे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी तो समाज के बाकी लोगों की है, शायद सार्थक की है, शायद डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल की है, शायद भावेश जी की है, और वो लोग ही ये काम करेंगे। मेरा जन्म इस काम के लिए नहीं हुआ है। जब खुद मैं व्हीलचेयर पे आ गया, 6 महीने बेड रिडन रहा, तब ये महसूस हुआ कि नहीं, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। हम थोड़ा थोड़ा सा हाथ बढ़ाएं तो इस पर शायद और आने वाले 50 सालों में हम भारत को किसी एक पैरेलल मंच पे ला सकेंगे। ये मेरा परिचय और मेरा जवाब है सर। आप अब सवाल पूछेंगे और मैं जरूर काबिल हुआ तो उसका जवाब दे पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है सर। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा ना कि जब आपको बुजुर्ग लोग थे वो छुपा देते थे बच्चे को और तो पोलियो ड्रॉप्स देने के लिए आए, यानी वो समझते ही नहीं थे कि भाई हमारे बच्चे को कुछ हो भी सकता है इस तरह का। जी। वो चीज को प्रिवेंट करने के लिए आप अपने स्कूल में ऐसा क्या करना चाहते सर, हम अपने सभी स्कूलों में अब इस तरह के अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं। हम डिसेबल की कम्युनिटी को लेकर अब घर घर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों में IIT रोपड़,
ISB हैदराबाद, IIM कोलकाता, इन सब इंस्टीट्यूशन ने भी खुले मन से हमें बुलाया है, स्वीकार किया है, हमने अपनी बातें उन तक बताई हैं। हम एक इस तरह की प्रिंसिपल्स और अपने टीचर्स की मैं बोलूँगा फौज खड़ी करना चाहते हैं, इस तरह की एक आर्मी खड़ा करना चाहते हैं जो ये एटलीस्ट अवेयर करें। आने वाले कुछ महीनों में हम पैरा ओलंपिक का एक पैरा एथलीट का एक पूरा डिवीजन अपनी यूनिवर्सिटी से शुरू कर रहे हैं, जहां से हम उनको एजुकेशन, ना केवल एजुकेशन देना चाहते हैं बल्कि उनको एशियाड और ओलंपिक और नेशनल गेम्स के लिए भी तैयार करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं सर वो छोटे छोटे स्तर पर हमारे स्कूलों में और हमारे फॉर्मल स्कूलों में चल रही हैं। हमारी नोटबुक जो लगभग 4 लाख नोटबुक सालाना जाती हैं, उसके कवर पेज पर उस तरह की हेल्पलाइन हम लोगों ने शुरू कर दी है ताकि अर्ली डिटेंशन के लिए पेरेंट्स तक वो बात पहुंच जाए। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि सिर्फ अवेयरनेस भी अगर हो जाएगी ना सर, तो हम 60% 70% से ज्यादा काम कर लेंगे। पेरेंट्स ये जान ही नहीं रहा है कि मेरे बच्चे की क्षमताएं क्या है, वो उसको छुपा रहा है, वो उसको बताने में गुरेज कर रहा है, वो उसको स्कूल तक नहीं लेके जा रहा है, वो उसको उसके साथ समय नहीं बताना चाहता है, वो ये नहीं बताना चाहता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो किसी तरीके से डिसेबल्ड हैं। अभी मैं पीछे देख रहा था कि कुछ जगह पे बच्चों को हथकड़ी में भी बांध कर रखा जा रहा है कि घर से बाहर ना निकल जाए। तो एजुकेट करना और अवेयरनेस होना, ये 2 बातें भी अगर भारत में हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि स्थिति काफी बदल जाएगी। मेरी आपसे एक गुजारिश यही है कि आपने जैसे कहा कि आपके स्कूल अभी भी डिसेबल फ्रेंडली नहीं है, लेकिन आप वो एक लड़ाई सी लड़ रहे हैं और आप उनको डिसेबल फ्रेंडली बनाएंगे। मेरा आपसे ये गुजारिश है कि आप जैसे जैसे उसमें वो बदलाव लाएंगे, जो परिवर्तन लाएंगे, उसको एक वीडियो के माध्यम से कैप्चर कीजिए और यूट्यूब पे रखिए ताकि हम और स्कूल चेन्स को बता सकें कैसे ये चीज, कैसा ये परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि कई लोगों को तो यही नहीं मालूम कि परिवर्तन करना क्या है। बिल्कुल, आप तो एटलीस्ट कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उसको एक बार एक यूट्यूब के माध्यम से, वो भी एक टेक्नोलॉजी हुई, ताकि बहुत लोगों को ये मालूम पड़े कि ये डिसेबल फ्रेंडली बनाने का मतलब क्या है, और वो आपके थ्रू से आ सकती है। और मेरा ये आग्रह है आपसे। बिल्कुल पक्का सर, बिल्कुल पक्का, आपका आदेश माना जाएगा, बिल्कुल पक्का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। I next come on to Dr. Bhushan Punani ji. He is presently working as General Secretary of the Blind People's Association, BPA, Ahmedabad, which is one of the leading disability NGOs in the world. He is also the president of the International Council for Education of Persons with Visual Impairment, West Asia. He joined BPA after completion of his MBA at IIM Ahmedabad, and he later completed his LLB as well as PhD from Gujarat University. Recently, he was conferred National Leadership IIM Bangalore Singhania Award as well as National Accessible Voting Award, both awards given to him by His Excellency President of India, Shri Ram Kovind. He was also honored with Distinguished Elements Award from IMA. Bhushanji, you are a member of the Central Advisory Board as per the provisions of Rights of Persons with Disabilities Act 2016. आप बताएं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग के बारे में क्या चर्चा हो रही है ताकि हमारे दिव्यांगजन कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच सकें। कुछ आइडियाज आपसे मिलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओवर टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून ऑल द पैनलिस्ट। मेरा सौभाग्य है कि आप सभी के साथ ये मंच शेयर करने का अवसर मिल रहा है। थैंक यू श्री अतुल भटनागर जी फॉर ए वेरी lucid introduction. Actually, technology is a great leveler. Because of technology, lot of new doors have been opened. आज काफी नए जो मार्ग हैं, नए अभिगम हैं जो पहले अवेलेबल नहीं थे। मैं केवल एक ही छोटा एग्जांपल देना चाहूँगा, जितेंद्र जी सहमत होंगे कि आज से 20 साल पहले कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर रिलेटेड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट नेत्रहीन के लिए एक सपना था, उसको स्पर्श नहीं कर सकता था, उसके बिल्कुल काम का नहीं था। और पहली बार एक छोटी सी डिवाइस OHEL जो यूके में बनी, जो कंप्यूटर के कुछ फंक्शंस को साउंड में कन्वर्ट कर देती थी। और आज स्थिति ये है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, बिकॉज ऑफ एक्सेसिबिलिटी, नाउ नंबर ऑफ ब्लाइंड पीपल आर वर्किंग एज कंप्यूटर प्रोग्रामर्स. They're working for TCS, they're working for Wipro, they're working for Mindtree, they're working for other large companies world over, and many more are working in the banks and
other PSUs, and they're designing the programs just because of technology. People who are in the wheelchair, their mobility was restricted because of motorized wheelchairs, because of special wheelchairs, adaptation, tailor-made wheelchairs, because of the GPS, etc. They can move around anywhere. They can do much better than they're doing. Same as hearing impaired. Cochlear implant was a dream. Today it's a reality. Because of cochlear implant, hundreds and thousands of children are hearing again. They are functional again. Digital hearing aid have made a big difference. All those things are being discussed. And I like to emphasize, tell all the panelists that we are very fortunate. Our laws, our policies, our even the new education policy which has just come, our Rights of Persons with Disability Act, all emphasize, facilitate use of technology. There's even a provision science and technology is adopted. All IITs, all premier institute in the country are doing wonderful projects. Pandit Deen Dayal Upadhyay University, they have hundreds of students which are developing the gadgets every day. But there's a problem which I like you to discuss. Technology is there, policy is there, policies are there, programs are there, but many times these technologies are not affordable. We have braille refreshable machine, very good, but cost so much money that a blind person cannot afford. We have digital hearing aid, very good, excellent, but a poor family cannot afford. We have computer related devices which are available, but people can't afford. Number one. Number two, still our country, I hope Atmanirbhar will become the dream reality of this country. Still we have to import a lot of technology. That's quite expensive. For example, screen reading software. One software costs $800. How many people can afford? Thanks to the new NVDA, which is an open source, people can afford it. So first point is that technology, first of all, is not affordable for the time being. Number two, technology is still not available within the country by our own means. But I must emphasize, things are changing very fast. A lot of companies within the country have come up now to develop the technology. Number three, and very important, most of time people are not aware. They're not, even the schools. I just like to tell Ajay ji, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप पोलियो पेशेंट नहीं हैं, आप पोलियो वॉरियर हैं. You are shown to the world कि you are not a patient at all. You have gone over your disability in a very smart way. I think everybody was like you, who can say I have so many schools and I'm making them accessible. So that also can be taken care by technology, by mapping your school. Sitting anywhere, you can map the school and go for a affordable technology. Now coming back, the fourth issue is that many times people are not aware where the technology is available, how it's available, and how to get that. Government has a scheme, ADIP scheme, but as you know, there's a lot of long procedure. Money is being spent in COVID, one may not be available. And fifth, and very important to sum up, we are very fortunate that on every platform, every big organization, people's group are now talking of technology. We are adapting technology. There's a DAISY Forum of India. There's a Bookshare. There's many other IIT Delhi, IIT Kanpur. They're doing a great work. I am very hopeful. The way things are moving, there is not a way that India becomes a technology hub for people with disabilities. Our tricycles, our wheelchairs are no less than any other country. We are as efficient, as strong, as solid in our production like anybody else. But the only thing is, it must become affordable. It must become appropriate. If that happens, technology is a great leveler. And as I mentioned, I repeat, COVID has proved a blessing. It's a blessing in disguise. Because of COVID, now we have learned that through technology, we can teach everybody at home. It was never experimented even. Today, our hundreds of children are benefiting because of technology, because of teachers' attitude, because of hard work of people. If that happens, Atulji, I am very optimistic. In the near future, technology will be, India will be the, Vishwa एक शक्ति बन जाएगा इस technology में. We can give the technology to many other countries because our production lines are more affordable as compared to many other countries. Thank you. Thank you very much, Punani. In fact, I just wanted to also inform the people listening to this session that Sarthak is making a global resource center in Haryana, in Gurgaon. A land has been allotted by the Haryana government, and we are now looking for funders to be able to bring up that building. And that building, when I say global resource center,
there will be technology, there will be R&D, and there will be, let's say, testing of technology that will be done so as to make it on a much wider scale at a much cheaper rate. So that is the whole, and it's not only for India, by the way, it's going to be for the world. India में सबसे ज़्यादा disabled लोग हैं, तो यहाँ से जो टेक्नोलॉजी बनेगी वो एक्चुअली पूरे वर्ल्ड को सर्व कर सकती है. ये हमारा पोटेंशियल है और हमें इस पे आगे बढ़ना चाहिए. Now, let me get on to the next speaker, Dr. Rajiv Kanpal. He is currently the Joint Secretary and Chief Financial Officer at GEM, Government E-Marketplace. He's an officer of P&T Accounts and Finance Services 1995 batch. He has over 22 years of work experience while working for various organizations in Government of India, Uttarakhand government, and PSUs like BSNL. Prior to joining GEM, he was working as Director DIPP, where he handled the Startup and Make in India programs. Rajiv holds an MTech degree from IIT Roorkee, a PGDM degree from MDI Gurgaon, and a PhD in Public Policy. राजीव जी, जेम की वेबसाइट को कोई देखे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है. यह भी टेक्नोलॉजी का कमाल है कि ई मार्केट प्लेस अब बन गया है जहां सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, पीएसयूज, मिनिस्ट्रीज और प्रोक्योरमेंट के लिए जेम पोर्टल पर जाएंगे. दिव्यांगजन के लिए आपने क्या सुविधा रखी है ताकि एंटरप्रेन्योर्स अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली गवर्नमेंट बायर्स को बेच सकें? आफ्टर ऑल, गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट बायर. राजीव जी, योर व्यूज. थैंक यू सर. सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ आपका और सार्थक का कि इतने सम्मानित एमिनेंट पैनल में आपने मुझे सम्मिलित किया और यहाँ मुझे आमंत्रित किया. आपका प्रश्न रिक्वायर करता है कि मैं छोटा सा एक बैकग्राउंड जेम का यहाँ पे दूं, ताकि इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का सीधा उत्तर दूं. जेम को भारत सरकार ने अगस्त 2016 में कंसीव किया, जब ये सोचा गया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से सारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट किया जा सके. और ये टेक्नोलॉजी ही है आज, क्योंकि हमारा आज का विषय भी टेक्नोलॉजी पे है कि कैसे इनेबल कर रही है टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के माध्यम से पब्लिक प्रोक्योरमेंट में 3 तरह की विशेष एडवांटेजेस आए हैं. पहला एडवांटेज है ट्रांसपेरेंसी. जैसा कि हम जानते हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट अक्सर लैक ऑफ पारदर्शिता की कमी या करप्शन इश्यूज में मायर्ड रहता है. तो ये सोचा गया कि एक ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे बहुत विद कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी वन कैन गो अबाउट प्रोक्योरमेंट of whatever the needs of a government organization are. The second great advantage that technology provides us in public procurement is that of efficiency. By efficiency, I mean that earlier when we in the government used to do bids, it was a very time-consuming, lengthy cycle, almost a cycle of 6 months, where the bid life cycle would be or extend to almost 6 months. But आज जेम के माध्यम से एक डिजिटल, जहाँ पे हमने डिजिटल प्रोसेसेस इनेबल कर रखे हैं, एक टेंडर, बिल्कुल नवीन टेंडर भी हम 20 या 25 दिन मैक्सिमम में क्लिंच कर सकते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स अपनी बिड्स के लिए प्राप्त कर सकते हैं. तीसरा जो विशेष है, जो कि आज के हमारे बातचीत के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इक्विटी. जब जेम को बनाया गया तो एक विशेष मैंडेट भारत सरकार ने जेम को दिया कि it has to be a inclusive platform which addresses the issue of equity, and that is where in today's discussion is especially relevant. और इसीलिए जेम एक विशेष responsibility own करता है towards special seller segments like say दिव्यांगजन or like say other startups or MSMEs or women entrepreneurs, जो शायद अगर सीधे सरकार को बेचना चाहें अपने गुड्स या सर्विसेज, तो उनको बहुत सारे बॉटलनेक्स फेस करने पड़े. सो दैट इज व्हाई वी आर देयर. जेम इज देयर टू प्रोवाइड अ स्पेशल अपॉर्चुनिटी टू सच नीश स्पेशल सेलर सेगमेंट्स, ताकि वहां पर आप जेम में अपने डिजिटल प्रोसेसेस के माध्यम से यू कैन सेल टू द गवर्नमेंट. अब मैं आता हूं, आपका दूसरा प्रश्न जो था दिव्यांगजन के लिए जेम किस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं. तो जेम का ये प्रयास है कि इस दिशा में हम कुछ विशेष ऐसे कदम उठाएं ताकि जो हमारे पीडब्ल्यूडी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उससे लाभान्वित हो सके और भारत सरकार को अपने उत्पाद और अपनी सर्विसेज
बेच सके। तो इस तरह से हमने अलग अलग सेक्टर्स के लिए आज भी हमारे पास स्पेशल माइक्रोसाइट विद इन जेम अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पेज कॉल्ड वुमेनिया ऑन जेम, जहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अपना सारा अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लिस्ट कर सकते हैं और वहां से डायरेक्टली गवर्नमेंट बायर्स खरीदते हैं। ऐसे एक हमारे पास स्टार्टअप रनवे भी एक स्पेशल पेज है, डेडिकेटेड पेज है, जहां से सारे स्टार्टअप्स अपना जहाँ पे प्रोडक्ट्स रजिस्टर करते हैं, ऑनबोर्ड करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। इसी इसी श्रृंखला में हम एक दिव्यांगजन स्टोर जेम पर बहुत जल्द लाने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और मुझे लगता है लगभग अगले महीने हम इसको लॉन्च कर देंगे। तो इसमें हमारा यह प्रयास है कि जो पीडब्ल्यूडी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि who have a disability certificate say issued by Department of Empowerment of Person with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, और NGOs हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, who are working with दिव्यांगजन and in possession of certificates issued by respective state governments, they will be allowed to upload and list their products on the दिव्यांगजन market page. इसको हम बहुत फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं, लेकिन जो अभी हमें समझ आया है, और आई वुड लुक फॉर द फीडबैक, इस मंच पर भी मैं आप लोगों से फीडबैक चाहूंगा। हम अभी इसमें 5-6 तरह की प्रोडक्ट कैटेगरीज लिस्ट करने वाले हैं, नेमली souvenirs and gifts, then we are going to have a category for eco stationery, fashion and apparel, toys, games, bed, bath and beyond, और छठा जो हम कैटेगरी रखना चाहते हैं हेल्थ एंड वेलनेस। These are of course flexible categories, और जैसे as we go along and more PWD entrepreneurs join our page, we will try to make it more enriching, more populated, and I believe that this should be a very significant step of, very small but very significant step of GEM in assuring कि जो हमारे entrepreneurs हैं, PWD entrepreneurs हैं, they also start getting orders from public procurement process. Thank you very much, राजीव जी। एंड भावेश जी, आई थिंक आपको कुछ नया आइडिया मिला होगा यहाँ से जेम में करने के लिए। बिल्कुल, मैं राजीव जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है सर कि चीजें बन जाती है, एनजीओ हो या कोई हमारे दिव्यांग मित्र मिलकर कोई प्रोडक्ट अगर डिजाइन करते हैं, लेकिन उसको सबसे बड़ी बात होती है सर उसको मार्केट करना। और राजीव जी ने बहुत अच्छा बताया सर कि इस तरह से हम ऑनलाइन पोर्टल या टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे प्रोडक्ट को दुनिया के किसी भी कोने में भिजवा सकते हैं। सर ये बहुत जरूरी है, और आज इस प्रोग्राम को जो भी मेरे दिव्यांग मित्र सुन रहे हैं सर, देख रहे हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहूंगा सर कि हम ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग, सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सर इसको प्रमोट करने की हम बहुत अच्छी तरह से कोशिश कर सकते हैं सर। हम सनराइज कैंडल को सर पूरी दुनिया तक पहुंचा पाए बिकॉज ऑफ सर टेक्नोलॉजी के माध्यम से। सर आज अमेजोन से लेकर फ्लिपकार्ट से लेकर हर एक पोर्टल पे सनराइज कैंडल उपलब्ध है। और राजीव जी ने जिस तरह से कहा सर, अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोडक्ट को देख रही है सर, ये ट्रूली आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट है सर, और इसके माध्यम से हम और कई हजारों जो हमारे दिव्यांग मित्र हैं जो आज भी कतार में हैं काम के लिए, तो उनके लिए बहुत नए आयाम हम नए निकाल सकते हैं, और आने वाले दिनों में उनको भी बहुत सारे नए रोजगार जनरेट हो पाएंगे सर बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं ये कहना चाहूंगा टू कॉम्प्लीमेंट राजीव जी एंड द एंटायर जेम टीम कि देखिए ये जो आइडिया आया था दिव्यांगजन को कुछ करने के लिए स्पेशल, वो इनके सीईओ को दिया गया था, मिस्टर तल्लीन कुमार, और उन्होंने जैसे कहा कि मतलब हम लोगों का जैसे मानना होता है गवर्नमेंट बड़ी स्लो है, अब तो 1 साल लगेगा या 1.5 साल लगेगा, कुछ दुनिया भर के पेपर वर्क करने पड़ेंगे। एक भी पेपर मैंने कभी भरा नहीं सार्थक की तरफ से, मैंने तो केवल एक गुजारिश की थी, और बाकी इतना जल्दी काम हुआ है। और आज राजीव जी कह रहे हैं within a few days, I would say, if not a week, ये चीज़ लागू हो जाएगी। तो मैं इस मामले में गवर्नमेंट का एंड जेम का इस मामले में बहुत ज़्यादा सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को जैसे इनको सार्थक बना दिया हमारे लिए और दिव्यांगजन के लिए, और सब जगह आप इसके अवेयरनेस कीजिए, क्योंकि दिस इज द वे टेक्नोलॉजी इज अ मीडियम एज एन एनेबलर फॉर एंटरप्रेन्योर्स। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स भी कई सारे होते हैं, बना भी लेते हैं, चीज़ें अच्छी बना लेते हैं, लेकिन बेचना नहीं आता, और बेचेंगे कहाँ, तो उस मामले में बड़ा उनको प्रॉब्लम होती है। तो आई थिंक जेम इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग
a game changer in this regard. Thank you, Rajiv. Now I come to Mr. Gulati. Now, Rajiv Gulati is a Senior Program Officer, Incubation UN Technology Innovation Labs. He is part of the team which has the responsibility of leveraging emerging technology to transform societies, nations, and humanity at the UN Office of ICT, India, and for coordinating and implementing ecosystems for incubation and for accelerating Sustainable Development Goals, SDGs, through technology and youth. He has spent over 35 years serving central government, state government, and medical diagnostic imaging industry in India. राजीव जी, आपका अनुभव भारतीय गवर्नमेंट और यूएन जैसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहा है. आप इंक्यूबेशन सेंटर में क्या इनोवेशन कैसे पहचानते हैं? हाउ डू यू ब्रिंग आउट ट्रांसपेरेंसी इन रिकग्नाइजिंग एन इनोवेशन? और जो प्रोडक्ट और सर्विस जो भी आपके सामने आता है, वो पहली बार जो आता है वही चीज इनोवेशन कहलाएगी, उसके बाद सेम चीज कोई और पेश करेगा तो दैट्स एन एप्लीकेशन और अ कॉपी. तो आप ये बताइए कि ये पूरा इकोसिस्टम, ये कि पूरा राइट फ्रॉम रिकग्नाइजिंग टू सपोर्टिंग टू इंक्यूबेटिंग टू एक्सेलरेटिंग एंड देन टू मार्केटिंग इटसेल्फ, हाउ डू यू डू इट in with respect to UN and your experience in the Indian government? Shukriya, thank you, Atul ji, and the dignitaries, the panelists, and the Sarthak specifically for giving this opportunity. मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ नई चीजें इस माध्यम से मुझे सुन के लगी. एक एंटरप्रेन्योर्स और जो आपके बिजनेसमैन हैं उनका एज के साथ कोरिलेशन मैंने पहली बार आज की डेट सुना. एंड ये in fact is the right thing. Entrepreneurs are the people who keep doing the risk and playing with the risk. That's why अगर उनकी कोई definition में जाते हैं तो businessman को generally कहते हैं they are the leader of the society, और entrepreneur they are the player in the society for building the businesses. So when you are looking into the player inverted comma में, जो player होगा वो हमेशा जवान ही रहेगा सर. So I endorse Bhavesh ji your comments very well, and then the other people who are really playing and making the society young. और ये यूथ कह लो, यंग कह लो, उनमें जो एंटरप्रेन्योरशिप के गुण हैं वो इतने गुट के भरे हुए हैं, सिर्फ हमने उनको उठाना कैसे है ये सब. जब ये इकोसिस्टम बनते हैं, ये करते हैं, इनके लिए मैं आपको छोटी एग्जांपलों के साथ कहूंगा. बहुत 3 चीजें जो अभी इस पूरी डिस्कशन में उठ के आ रही हैं. वन इज ऑफ अवेयरनेस, अनदर इज आप कह सकते हैं जो अफोर्डेबिलिटी है, जो इस वक्त बहुत जरूरत है. मैंने इजराइल में जाके देखा है, एक इसके फ्रेम के ऊपर विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ एक उन्होंने इक्विपमेंट लगाया है, और उसके साथ दे कैन रीड थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए AI के थ्रू वो बहुत कुछ कर पा रहे हैं. लेकिन जब मैंने उसकी कॉस्ट पूछी तो वो कॉस्ट इवन अच्छा आदमी भी जो नॉर्मल है और अच्छा बिजनेसमैन है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो दिव्यांगजन कैसे उसको अफोर्ड करेंगे. सो दिस इज ए बिग क्वेश्चन. तो जब हमने गवर्नमेंट के साथ रह के हमने ये सोचा, इनके उसी को मैं वर्ड को बोला, हाउ टू क्रिएट दिस प्लेग्राउंड फॉर द इनोवेटर्स, सो दैट इनको एक जगह दी जाए जिसमें ये इकोसिस्टम डेवलप हो, और नॉट ओनली फॉर द अदर पीपल बट फॉर द होल सोसाइटी. जहाँ पे इन UN में हम कहते हैं लेट अस लीव नोबडी बिहाइंड, हमको सबको साथ में लेके चलना है इसको, और इसकी हमें सस्टेनेबिलिटी कैसे बनानी है, और इसकी जो भी इनोवेशंस होती हैं उनको लोगों तक कैसे अफोर्डेबल तरीके से पहुंचाना है. तो जो इकोसिस्टम का आपने नाम लिया, जब हमने इंक्यूबेटर बनाए, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड का जो गुड़गांव में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने इकोसिस्टम बनाया है, एक ऐसा यूनिक मॉडल है जो मैंने आज तक मेरे दुनिया के बड़े सारे इंक्यूबेटर देखे हैं, उसमें नहीं है. क्यों नहीं है? दिस इज द ओनली इंक्यूबेटर जहाँ पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की स्किल भी हो रही है, उनको उसी इंक्यूबेटर में रखा गया है जहाँ पे लोग इंक्यूबेट दूसरे टेक्नोलॉजी के ऊपर इंक्यूबेट करके नई चीजों का इजाद कर रहे हैं. अब जब वो लोग इनके चैलेंजेस को देखते हैं तो इनके साथ बैठ के प्रैक्टिकली जो चीजें डेवलप होनी चाहिए वो एक्सपेरिमेंटल तौर पे हैंड्स ऑन करके इनके साथ डेवलप कर रहे हैं. उन स्टार्टअप्स ने, उन यंग एंटरप्रेन्योर ने ये देखा, इनके विजिबली जब ये चैलेंज है, इनको लैंग्वेज की कैसे प्रॉब्लम है, इनको कंप्यूटर ऑपरेट करने की कैसे प्रॉब्लम है, इनको चलने की कैसे प्रॉब्लम है. एक रिसेंटली एक इंक्यूबेटर आया, रिसेंटली नहीं, अबाउट 2 साल हो चुके हैं,
ही आल्सो वर्कड देयर, उसने ऑटिज्म के ऊपर और उसके कोरिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके ऐसा टूल बनाया है, जबकि अगर आप उसको अदरवाइज मार्केट में डॉक्टर के साथ अगर वो करने जाओ तो आपको जो कॉस्ट होती है, और उस टूल को आप घर पे बैठे बैठे आप यूज करके ऑटिज्म के जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस कर सकते हो। ये उस इंक्यूबेशन से ही एक बंदे ने निकल के उसने अपनी वाइफ के साथ एक स्टार्टअप बनाया और उसको अफोर्डेबल बनाया। तो कहने का मतलब है, जब हम इकोसिस्टम की, जब गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो हमें ये जो पॉलिसीज हैं इनके अराउंड जब चीजें हैं बन तो जाती हैं, लेकिन उनको सस्टेन जब कराना पड़ता है तो जो आप जैसे लोग उनके साथ देते हैं, प्रैक्टिकल चीजें उनके साथ सामने लेके आते हैं, तभी वो रियल तौर पे सस्टेनेबल और अफोर्डेबल और जो लोग उनको यूज कर सकें वो इकोसिस्टम तैयार होते हैं। और मैं इस चीज को कहते हुए बड़ा अपने आप में प्राउड फील करता हूँ, जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने ये एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया था, उसमें जब उन्होंने अपने CSR को यूज करके सार्थक को वहां पे उनको प्रोविजन दिया और उनको देखते हुए कई स्टार्टअप वहां पे निकले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने अपनी स्किल प्रोवाइड की, लेकिन कई स्टार्टअप ने अपने आप को एज एन बिजनेस मॉडल वहां से तैयार किया जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को उसको चैलेंज दे। और इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने उनको यहीं अपना वर्ल्ड सेंटर बनाने के लिए आमंत्रित किया। सो गवर्नमेंट इज वेरी एक्टिव। जब जैसे आपने अभी जेम वालों को भी सुना, उन्होंने कैसे आपके रिक्वेस्ट को अभी इस चीज को आगे माना है। तो अल्टीमेटली ये होता है, जब हम दिव्यांग को खुद को कहते हैं आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए और उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे में बैठे हुए दो हमारे पैनलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज को अपने को एज ए डिसेबिलिटी नहीं माना, इसको एबिलिटी टू विन द वर्ल्ड, और वो एक सोल्जर बन के सामने आए और उन्होंने दिखाया भी यस हम भी एक उस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं जहां पे लोग हमको एक्सेप्ट करते हैं और हमारे बिजनेस को एज ए बिजनेस मॉडल के लोग दे के उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। सो ओनली थिंग विच वी रिक्वायर एज एन उसमें चाहे गवर्नमेंट में है चाहे UN में है, इनको ग्रास रूट के ऊपर इन लोगों को प्लेटफॉर्म्स दिए जाए, इनको वो चीजें बताई जाए जो अवेलेबल अफोर्डेबल हो सकती हैं, वो उनके हाथ में टूल्स दिए जाए। टेक्नोलॉजी वो ही अनेबल कर सकती है सोसाइटी को, उसी को आगे बढ़ा सकती है जो यूज प्रॉपरली की जा सके। यूज तब हो जाएगी जब मैं उसको खरीद सकूं, जब मैं उसको पहन सकूं, उसको ले सकूं। सो हिंदुस्तान इस चीज के ऊपर सारे जितने ये अभी इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है उसमें इन चीजों को काफी ध्यान से देख रहे हैं ये लोग। कुछ स्टार्टअप्स हैं जिनको मैं मेंटर भी कर रहा हूँ, उनको स्पेसिफिकली इन चीजों के ऊपर मैं ज्ञान भी देता हूँ। क्यों ना इस तरह की संस्थाओं के साथ आप हम UN में कहते हैं दी SDG 17 दी पार्टनरशिप्स। सो पार्टनरशिप्स आप लोगों के साथ करते हुए उनके साथ उनकी नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए इस डायरेक्शन में बढ़े। सो मैं और अगर आपने टेक्नोलॉजी एज एनेबलर होगा तो मैं आपके साथ वो चीज इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहा हूँ जो मुझे मॉर्निंग में सार्थक वालों ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है विच इटसेल्फ इज सच ए पावरफुल एप्लीकेशन जिसकी बहुत जरूरत थी। लोगों को यही नहीं पता होता था, जो अवेयरनेस का पॉइंट आया, कौन सी चीज कहाँ से लेनी है, कहाँ पे पड़ी है, चाहे वो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो सर्विसेज है। सो मैं उनको भी कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं जो टेक्नोलॉजी आज एनेबलर बन रही है सब लोगों के लिए, उसमें उन्होंने भी आगे बढ़ के आज एक एप्लीकेशन लॉन्च की जिससे मैं उनको बधाई देता हूं, उनको कांग्रेचुलेट करता हूं इस चीज के ऊपर। इट इज गोइंग टू मेक एन ए बिग चेंज इन द सोसाइटी और इन लोगों को आगे ले आने में मदद करेगी। थैंक यू राजीव जी। कैप जेमिनी का जो ऐप आज लॉन्च हुआ है उसका नाम है कैप सारथी, और कैप जेमिनी ने सार्थक के साथ पार्टनरशिप में ये मोबाइल ऐप बनाया है जिसके अंदर आपको दुनिया भर की सर्विसेज, आप डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट यू आर इन, कहाँ पे हैं, किस एज ग्रुप में हैं, कैसे दिव्यांगजन, किस तरह के आपके डिसेबिलिटी है, क्या सर्विसेज आपको मिल सकती हैं, कौन से जॉब्स अप्लाई होते हैं आपके लिए, कहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं। और डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल जी ने जो कहा कि आप शुरू में आप एनरोल हो जाइए, उसके बाद हम 60 साल तक आपकी ये यात्रा में साथ रहेंगे। तो अर्ली इंटरवेंशन से लेके स्कूल के माध्यम में फिर आपने पढ़ाई की और उसके बाद जॉब लिया, फिर उसके बाद कुछ में भी अपना एंटरप्रेन्योरशिप कुछ शुरू किया, उस सब की सर्विसेज इस मोबाइल ऐप से हम लोग आप लोगों को पहुंचाएंगे। बिफोर आई गो ओवर टू दिलीप जी, let me play the video of Cap Sarthi, the launch that happened.
CapSarthi is a one-stop solution for information and services for people with special abilities, designed in collaboration with Capgemini and Sarthak Education Trust. We intend to touch the lives of thousands of differently abled people and empower them digitally, economically, and socially, with special focus on people in the rural area. The application takes into consideration the accessibility requirements of all disability categories. Initially, it will be available in 6 Indian official languages, namely Hindi, English, Tamil, Telugu, Kannada, and Bangla. Let's get set to take a sneak peek in the application. Using the platform, people with disabilities or their family members can access relevant information through this app, such as information about government schemes, policies, and provisions such as disability certificate, pension, transport concessions, reservation, and others. Details of government, private, and non-profit service providers in areas of health, education, skill, employment, and rehabilitation. Details of national and international scholarship programs, details of fees or concessions on assistive devices providers, online resource such as Braille online audiobooks, details of assistive device and matrimonial services. There also would be informations of upcoming events such as assistive device camp, job fairs, and others. Various service support will also be extended using this platform, namely services such as counseling, guidance, early intervention, education, skill development, employment, career growth, and career continuance support. There will be parents counseling sessions, guidance, and support to parents of children with special needs, engagements, sensitization, and knowledge sharing with the change makers and aspirant in the disability sectors. Updates of latest development in disability sectors such as assistive devices, judicial orders, government provisions, research, and development. CapSarthi would support both Android and iOS devices and also would be available to people without smartphones. It's very simple registration form, 2 things required, name of the candidate and just the phone number. Thus, it becomes very simple for even people from remote villages. Once this information is provided, the offline team from Sarthak Help Desk Center would talk to them in their local languages and take it forward from there. It is now available in app stores, thus feel free to download the CapSarthi. Thank you very much and Namaskar. दिलीप जी, आपसे भी आप भी इस चीज के बारे में बता सकते हैं। हाँ जी। एक इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, ये जो चीज है कि भाई अगर आपने बना भी लिया, उसका थोड़ा कॉस्ट मॉडलिंग जैसे करें या उसका एक फाइनेंशियल मॉडलिंग करें, और उसके लिए क्या लिटरेसी चाहिए, मतलब वो कई लोगों को तो यही नहीं मालूम कितने में बेचना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज अपनी कॉस्ट लगानी चाहिए, तो इसमें आपका बड़ा योगदान रहेगा। देखिए क्या है कि कोई भी चीज अगर हम उसके कॉस्ट, 2 तरह के कॉस्ट होते हैं, एक फिक्स कॉस्ट है और एक वेरिएबल कॉस्ट है। अगर हम फिक्स कॉस्ट को एलिमिनेट करके चले और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रियलाइज करें और उस पर थोड़ा सा एड ऑन 1-2% करके चले, तो हम बहुत कम दाम में सब चीज और सब लोग को बेच सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी जो है इसमें वेरिएबल कॉस्ट बहुत कम होता है, इसके अंदर बेसिकली फिक्स कॉस्ट होता है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी कॉस्ट। तो अगर हम वेरिएबल कॉस्ट पे बेचे तो वी कैन सेल इट इज अ वेरी लार्ज वॉल्यूम एंड अल्टीमेटली हम फिक्स कॉस्ट को रियलाइज कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए, जियो ने क्या करके दिखाया। जियो के पहले जो कॉस्ट थे, या जियो को भी छोड़िए, आप रिलायंस का जब शुरू में 2002 में लॉन्च किया मोबाइल रिलायंस ने, तो इनकमिंग फ्री, उसके पहले 17 रुपए आउटगोइंग मिनट, 9 रुपए इनकमिंग मिनट, और उसको जैसे उन्होंने फ्री पे किया तो मोबाइल फोन इतने बढ़ गए कि दे अर्न मच मोर प्रॉफिट देन वे, उनको जब कम ज्यादा दाम में थी उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट। और आज जियो ने भी दिखा दिया कि कम दाम के बावजूद वो कितनी प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इसलिए इसके जो प्राइसिंग है
वो अगर हम लो पे रखें, माने जस्ट वेरिएबल कॉस्ट रियलाइज करें और फिक्स कॉस्ट को वॉल्यूम के ऊपर छोड़ दें, तो इट इज मच इजियर, मच बेटर थिंग कैन बी डन. So let me just introduce Mr. Bali. He's currently the CEO of the Telecom Sector Skill Council. Till June 18th, he was the director and CEO of Connect Broadband, and earlier he was with the Video Telecom. An accomplished business leader with 35 plus years of experience in management of businesses in 50 plus countries for more than 2 decades. He has honed his abilities in identifying potential opportunities in startups and rapidly changing environments. अरविंद, एक जमाने में जब ये कहा जाता था कि भगवान जी ने हम सबको एक धागे से पिरो के रखा है तो विश्वास नहीं होता था, लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री ने हम लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा है तो इसका सबको विश्वास हो गया है. बिल्कुल. इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है कि पिछले 20 सालों में हमारे डेटा हाईवे और टेलीकॉम टेक्नोलॉजी से क्या फायदा उठा सकते हैं. आपकी काउंसिल इसके बारे में क्या कर रही है? सो जैसा कि आपने बोला है कि आज की डेट में सबसे बड़ा अगर कोई डेवलपमेंट है वो टेलीकॉम है. इंडिया में ऑलरेडी 6.5% जीडीपी का जो हिस्सा है वो टेलीकॉम है. टेलीकॉम इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर. कुछ लोगों को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहता है कि अभी तो सिर्फ 3 ऑपरेटर रह गए हैं और 3 ही टावर कंपनियां हैं और 3 ही इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो शायद टेलीकॉम में अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा नहीं है. लेकिन एक्चुअल में टेलीकॉम में 6000 से भी ज़्यादा कंपनियां जुड़ी हुई हैं जो कि इन बड़ी कंपनियों को अलग अलग चीज़ों के लिए सपोर्ट करती है. क्योंकि टेलीकॉम में इतने काम हैं जिनको अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो शायद 1 घंटा मेरे को उसी के लिए चाहिए होगा. टेलीकॉम के जो डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, खास तौर पे जो कुछ काम ऐसे हैं जिसमें कि जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स आर द बेस्ट सूटेड. मेरे हिसाब से मेरे जितना अच्छा योगदान हम दे सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल से, शायद ही कोई और दे सकता है. ये क्योंकि डिस्कशन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है, तो एंटरप्रेन्योरशिप में जो सबसे बड़ी आज की डेट में नीड है, हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने भी कुछ टाइम पहले एक स्पीच में बोला था कि हमको कम से कम 2 टेक्नीशियन चाहिए स्मार्टफोन के जो कि हर विलेज में हो. और इंडिया में 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस हैं, तो मतलब लगभग 12 लाख के करीब लोग चाहिए जो कि गांव-गांव में बैठ के हैंडसेट की सर्विस प्रोवाइड कर सकें, हैंडसेट रिपेयर कर सकें और उनकी सर्विस प्रोवाइड कर सकें. तो ये जो काम है हैंडसेट रिपेयर का, वो सबसे बेस्ट सूटेड है जो जिनकी मोबिलिटी का इशू है या उस टाइप का इशू है, बट दे कैन डू दैट वेरी वेरी गुड विद द ट्रेनिंग. सिमिलरली कुछ जॉब्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, कनेक्टेड डिवाइसेस से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड. मतलब इतने सारे फील्ड्स हैं जिसमें कि डिपेंडिंग अपॉन कि किसकी किस टाइप की डिसेबिलिटी है, वी कैन एक्चुअली डिजाइन अ प्रोग्राम एंड वी कैन एक्चुअली मेक देम रियली एम्प्लॉयबल. हमारा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, हमने पास में काफ़ी काम किया है स्किल काउंसिल के साथ भी और सार्थक के साथ भी हमने काम किया है. हमारा जो एक्सपीरियंस है, आई थिंक फ्रॉम ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम रिजल्ट ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू, जो डिसेबल्ड बच्चे दे आर गिविंग मच बेटर परफॉर्मेंस देन एनीबॉडी एल्स, बिकॉज उनमें एक जज्बा होता है काम करने का, एक मतलब डिज़ायर है कि हम कुछ अच्छा करें. तो और एंटरप्रेन्योरशिप पे तो जैसे मैंने बोला है कि छोटे छोटे इतने ऑप्शंस हैं. आपको सर अगर याद होगा आज से 15-20 साल पहले जब पीसीओ का जमाना था, तो पीसीओ में काफ़ी ज़्यादा जो वर्कफोर्स होती थी वो मतलब किसी ना किसी तरह की डिसेबिलिटी के साथ वो लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते थे. अब आने वाले टाइम में वाईफाई पीसीओज का भी टाइम आने वाला है, गाँव में, Tier 3, Tier 4 टाउन्स में, सब जगह. तो मतलब एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योर माइंड के लिए टेलीकॉम में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है. मतलब अगर हाईटेक की मैं बात करता हूँ तो डेवलपमेंट के काम किए जा सकते हैं. अगर हम बिल्कुल ही लोएस्ट लेवल की मैं बात करता हूँ तो लोएस्ट लेवल में हैंडसेट रिपेयर, जो कि कहीं पे भी बैठ के ये काम किया जा सकता है, कहीं पे भी एक जगह रह के किया जा सकता है. तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है. हम लोग अभी तो खैर खास तौर पे इस साल का जो हमारा अपना टारगेट है, हम अलग अलग संस्थाओं के साथ काम कर रहे हैं और हम स्पेशल फोकस इस एरिया में लेकर आ रहे हैं. क्योंकि जो कंपनियां CSR फंड भी दे रही हैं, उनकी भी एक रिक्वायरमेंट रहती है या तो वुमेन वर्कफोर्स के लिए या फिर डिसेबल्ड के लिए जितना आप कर सके उतना कम है.
तो हम अब उस सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा मैंने एक स्पेशल सेल बनाया है टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल में, जो कि सिर्फ इस एरिया को ही देखेगा और मैक्सिमम लोगों को या तो एंटरप्रेन्योर मॉडल में या फिर जॉब के लिए किसी भी तरह से उनको तैयार करेगा। Thank you. Thank you very much, Arvind. Very nice of you to join in and give us a very, very nice finale to this whole session by promising so many jobs in lakhs, because people are looking for those jobs. Thank you very much. I've got a short question after which we'll wind up, and that question goes to Khandpal ji. I know the answer, but I think it should come from you. Saying, is GEM for buying in India or overseas also? GEM is a Section 8 company of the government of India, और जितना भी जो भारत सरकार के प्रोक्योरमेंट के नियम है, जिन्हें हम जनरल फाइनेंशियल रूल्स कहते हैं, उनका नियम 149 ये निर्धारित करता है उस जनरल फाइनेंशियल रूल्स का कि कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार की, और अब हम स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये कह रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को जो कोई भी गुड और सर्विसेज खरीदना है तो मैंडेटरीली जेम से ही खरीदना है। तो आपके प्रश्न का आंसर ये है, जो भी रिक्वायरमेंट, प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट भारत सरकार या उनके किसी विभाग, उनके किसी मंत्रालय या कोई कंपनी जो भारत सरकार की है उनको खरीदना है, वो कंपलसरी रूप से जेम के माध्यम से ही क्रय करती है। तो यदि एज अ सेलर आप चाहते हैं भारत सरकार में कोई ऐसी आपको लगता है ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत रेलिवेंट है, तो जेम इज द प्लेस फॉर यू। Thank you very much. Now we've run out of time, so I'd like to thank you all, Bhavesh ji, Dilip ji, Rajiv ji, Arvind Bali ji, Rajiv Gulati ji, Ajay Gupta ji, and Bhushan Punani ji, for being here for us, for the Divyangjans. And for the Divyangjans, I'd like to thank you. Namaste.